You getting what I'm saying? Hanji. Actually, I forgot to record it, but now let me record it for some people who would like to have it because they're exam time. So I am saying we said a lot of things here that I want to have a header here where there's a logo because this is a portfolio, so it's gonna be your name, and we will use some drop caps to make this D bigger or this J bigger or whatever you like, and so on. And then there will be the light and day mode where there is two icons. One is the moon and one is the sun. Okay, and we will use the JavaScript to actually toggle between the two. That there will be only one icon right now. And firstly, there will be day mode. Okay, so it will show the moon only. When you click the moon, it will actually make everything dark. It will make dark everything, so night mode. And the sun will show up. This will hide and the sun will come. So you can have the two icons, or you can also have some kind of a slider. Okay, you press the slider on the right, it becomes, it toggles between day and night, and the icon comes here. You can do that also. You can do, again, add many things. And like for example, these there are them some home, about, skills, projects, and contact. These are my icons. You can have one of the thing on it, which is going on it, like some red kind of a box which looks like it's sliding from this. If you hover here, it moves from here to here. Okay, we can do that also, or we can do the better animations, because we have to do a lot of practice. So we will use a couple of animations here. One is that we will have that box coming over them, or we can make its text animate using the linear gradient. When you hover, the underline comes up, and there's a linear gradient and all, right? So we can do a lot of animations here. Then if you make it smaller, you make it small, the mobile phone size. Now these all icons, these all menu, this all menu will go off, and hamburger will come in, right? The hamburger with the three lines, we will create of our own. No pictures, we create of our own, and we create animation for it. When you click it, the side menu will come up with all these here on the side, because we don't have a space in a mobile phone. We had done it already, but this hamburger will create of our own. Secondly, when you click this, and this will show up, and this will turn into the cross. How it will turn the cross? We have three. We will hide the middle one, and we will rotate this one, the upper one, like this, and we will rotate this one in negative direction like this. So it will rotate negative direction, so it becomes cross. So this hamburger itself becomes a cross, because now we want to press cross, and this side menu will go off like that. And then we have this is our home page, where we have a big picture here, the rounded picture. Then there is some text here, and then there is here text which is getting typed, like I'm a coder, I'm a developer, I'm a MERN stack developer, I'm a Vue stack developer, I'm a backend developer, I'm a front end developer, I'm a full stack developer, whatever you like to call it. Those things will come up, writing and go off, erase, coming up. There will be animation using typed.js. Using typed.js. We'll use the typed.js. So we'll technically use JS now. Okay. Later on we start JS. Now soon we will be using JS. So we'll read it threadbare, everything in a JS. JavaScript is a basic thing which you need to know. And then there will be the sections. Like if you click the about here, it will scroll up and take you to the about. But this about section will take the whole viewport. Now there will be the about section. Okay. Now after that there will be some like skill section, which will take again the whole viewport. Then after that there will be some like project section, what projects you have done, right? It will take again the whole space, whole viewport. In the projects you will have those tiles of those projects, what projects you have done, and there will be links of those, like if it is on the GitHub and all. Okay. And then there will be some kind of a footer, the contact, firstly the contact, and all these things will be the sections. We create the sections for each of these. And this guy actually will take you press anything, because it's a single page. It's a single page portfolio. You press the about, it will go to the about section. You press the skill, you go to the skill section. You press skill, it should go to the skill section, where the skill section is. You press the project, it will go to the project section, and so on and so forth. And it should look beautiful. And we have to do actually practice of animations and everything we have read so far. One more thing which I will tell you is, which I'm not, which we will not be able to write down right now. No, do it actually when you do the project.
we don't use typical CSS. We use actually the SAS these days. Okay, we will have, after this we will start the SAS. Actually, I should have done SAS and after that the project, but I think we should do the project so that you get some practice of the things. uh, the SAS is what, because what we do is, for example, you have the color scheme here. Are you getting me? Is my voice clear? Everybody with me? Yes, sir. Oh, yes, sir. Listen, everybody understand what I'm saying? See, what I'm saying is, just look at me. Sometimes we should look eye to eye because I'm not having the. No, you guys should be. Chai ke pittarin, by the ways. Anyways, what I'm saying is, when you develop a project, we don't do the conventional CSS. We use SAS these days. Okay, why we use SAS? Because you have, for example, to design a page, there will be tons of times where, for example, if I take the color into the mind, there will be tons of time where you're using the particular background color, you're designing the buttons, you're designing some, because there'll be some theme. For example, I told you the header. There is a header and there is the sidebar coming up. They should have the same, color scheme, right? And there is what's called the theme of colors. Like what should be the front end? If you have push the dark mode. Now in the dark mode, what should be the background color? What should be the foreground color? Right? And similarly, if you have the light mode, what should be the foreground color? What should be the background color? And what should be the color on buttons? What should be the color of background of the button? What should be the color of any picture? What should be the animation you do? And all those, for them, we use variables now. We use what? And we know as a programmer, variable is very important. Because if you want to change something tomorrow, you have written, because you see this project we built, it's a very simple and basic project, but it will have some thousands of lines of code. And then finding color, change, it will be a tough time. So better is to use variables on the top. So in the SAS, what we do is, the first thing, there are many things we do in a SAS, but the first and primary thing is, we create a pseudo class called a root. And in this root class, pseudo class, we use the variables for colors and many more things. And then we do not use the physical color there. For example, I created here, for example, a variable A, simple I'm saying, which is for some color. Now, whenever I need that color, I will use that variable name there. Okay, there will be the var and this and structure and all. I will not go into that. We will do that later on after this project maybe. And we will use the variables. This is the one thing, because now it will give two benefits. If you want to change somewhere the color, you have to change on, because I know this is my background color. And now later on I got an idea that this background color is not good. Okay, so I can change it here only, and if I use it 10 times in my project or 20 times in my project, it will change automatically to the 10 times, right? Getting? अच्छा, मैं आपको स्क्रीन पे लिख रहा था, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैं लिख रहा था इस पर. You getting my point I'm saying? Dude. Yes, sir. Yes, sir. What I am saying is, I will create a pseudo class root. Okay, and I am in this, I create some variables here, right? In this root, there will be some structure of that, how we create the variables and all. We'll do that later on. But for example, I said this is the background color. I create the background color and a variable, and I use that background color instead of where I use the physical color, no, that hash code or whatever. That hash code I use here. So if I have to change, I have used the background color or foreground color, say 20 times in my project. Now, if I want to change, I have to change only once, right? It will get changed everywhere. We know that, right? So variables are very important, and it will create also the theme of a project, because if you create this theme, now you can use this theme if you like it for your other projects also, right? Rather than, you may have, worked out ki ye color chu gasan asal, ya chu gasan ye mix up asal. And then there are many sites also which give you background, pictures and all, background pictures and background styles. And also I will show you, then there will be the sliders to choose about the colors, like foreground में क्या था, background में क्या था, पता अगर से Yes. light mode छी, dark There's a mode छी. site, sir, I used to use that's Coolers. There are many sites. There are tons of That's sites. Okay, there are tons of sites which will help you doing that. We will see that later on.
But right now we are not on the SAS, so we will not talk about that. We will just plug in our colors. But remember that thing, this is not the good way. Okay, you getting the point what I'm saying now? Now the first thing first, what should we develop? We should develop our, let us see what we have done. We have done about, we have created last time a wrapper class. Now my wrapper class will wrap everything. Okay, this is the outer class, outer box. Then I have the header. Okay, I got the header. In header I have created a link. This is what we have done so far, I don't remember. Then I have created a span. This is last time we have done, right? Then there is doctor, then Junaid Iqbal, and so on. Now D is with the class span, which is named drop cap. You can add the same span to J. Okay, you can add up same span to J so that J becomes bigger, right? I can put up just like this. Copy this, Command C. What happened? Command Control Z. Command C means copy. Then I can put up Command V, and I just want to put this J in here. That means if I do something on a drop cap, that will be applied to D as well as on the J. And R will be like that, and then J and Unaid and Iqbal, and maybe I will only do then the same thing with the Iqbal. Okay, Command V, and I comes up there. Okay, and QBAL like that. You can do with the first letter. I'm doing drop cap with the every letter of it. Then we have created already the navbar. Now I will also create here one span, empty span. Okay, this span will be used for animation, wherein this span will go on the home and on about, on skills and projects and all. Getting? What will happen to the span? Is anybody tell me? What's happening with the span? Yes, what I'm telling. This will actually, but between the your navbar and between the your header, the logo, there is the night and day, the night and day icons, right? So we have here between my header, if you see what I have told you here, between the logo, and this is here or not here, where is that? Or this one, between this name and this guy, I have the day and night icons, right? So what I do for the day and night icons, I gotta do something for that. So here for that, I will create, say for example, maybe one div, okay, which I called as day night. I call it what? So I will write here firstly that I am using command / day night icons. Okay, and here I will create one div with the name of day night. For example, I'm creating for the day night. This will help me to go in a day night. In this, I will need couple of what? I need couple of their icons. Maybe I go to the bootstrap icons. In bootstrap icons, what I do here is I go to the icons. Okay, in the icons I will go for icons here, and I select here, say for example the sun. Firstly I need moon. I will take this moon and I copy the SVG here, and I go on my project, and in the day night, the first thing I will say command V, and there is a class of day night, and then this is the XSVG image, and this is not icon, okay, which is having the class by and by moon fill or something, and I also create one more class called it moon so that I remember what was it. Then same way I go back to the icons here. Now I find what? Sun. SUN, sun. And I got to lit up the sun, maybe this one.
Okay, you can choose anyone you like. You say copy the SVG, go back to my code and press it here. After this SVG, I will have the command V, and I also change its class. Where is its class? Path window, where's the class is here, and bright and whatever the name is, I call it sun. I will create one sun here, right? And I can make it bigger. For example, I create the width 22. Okay, and here also 22. Let me see later how it pans out. We can change accordingly, 22 and 22. Now if I just give it a go and see how the things are going in my browser, so it's like that. This is the moon and this is the sun right now. Nothing is, because it's a, they are all in the outer wrapper, and wrapper is a flex box. Have we created the flex box or not? Where is it? We must have created the wrapper. Wrapper is being created. Okay, last time we have created it, if you remember. But this pop-ins, we need to have them Google APIs, but right now it will show some random font because we had to download this pop-in sensor. Anyways, now display is flex, and we have layered up everything center, center, center. Min height I said 100 VH. Later on we change it. Background is linear gradient. Okay, and we have done some animation on this. We have done it last time, so we are actually changing the backgrounds. This, so background will come from one position to other. So position is changing, so therefore it will give some animation to us, right? This is what has happened already here, right? As you could see, it is giving that animation. You can change. Let me close this. Let me close this. Okay, let me come here. Okay, now background is changing, so we have done a lot of things here. Now we need to design what? Header, right? We will give the style to the header. What do you think the header should do? We are on the wrapper, we have done this animation. Now we should have the header. What should the header firstly have? Because we want to line them up, in the header. If we see here, why is it giving me this thing? Okay, if you see all these guys, they should all line up here in the top. Like Dr. Junaid should come here, then the moon and sun, a single icon should come here, then these guys should come here, and we have to design them up so that they look beautiful. So that means I will have firstly the header, and have I given some name to the header? Have I given some class to the header in the index? We got the header with the header, right? So command C. Otherwise you can say directly header, because we will only have one head, not two heads. But we have given the name. Not necessary, it was not necessary to give it, but now we have given, so we say dot header. So what should the dot header? Firstly, what should be the display? Display should be definitely the flex, because I want to line them up, right? Now they will be all lined up. They're all lined up. This is Junaid Iqbal is here, then the moon is coming up, then this is coming up, then these allies are coming up. Okay, now display has to be flex. What else I can do? What should be the flex direction? I don't need to say it, but we should specify it that it is row. Come on, you should talk with me. And justify content, I should say space between, because I want to pan them up, right? Because I want to spread them. Space between, right now it's not showing up because of many things. We'll see it why it's not showing up. Justify content, space between, and align items what? Align items center, definitely. Okay, and what else you want to do? You want to make its position. Firstly, align item, now it's aligning properly. Now they should come up here on the top. Okay, it should come up top, and when I scroll, it should stay there. So therefore, what I want to do is I want to make its position firstly fixed. And where you want to put that fixed position? I have to put that where? When the top is 0, that means on the top, and left is 0. That means I want to fix it forever. Even though you scroll to the next section, but now what happened to the header is I will give its width firstly
So how much? 100%. It should take the whole space. Okay. Now it should go on the top, as you could see. Now it's going to the top. Space between is now working because the width is now 100%. Okay. And this Dr. Junaid Iqbal is coming on the left. This is coming on a center, but they should, they should not come to, one should hide, one should come on the click. We will see that. Anyways, and here the home, about, skill, and they are also lined up like this. They should not line up. They should come up here like this. So that means they should themselves be flex. Okay. So that they line up. Getting up to anybody having problem up to this? नहीं बोले आप, कोई मसला नहीं है, because this is, listen, जो अभी हम कर रहे हैं, listen to me, where are you guys? जो अभी हम कर रहे हैं, it's a practice. Okay? Practice means you have to ask questions if you don't understand. Huh? Anyone having question till then? Anyone having question? अच्छा, अब ये देखो साइड में आ रहा है ना, इसको आगे कैसे भगाएंगे हम? कोई बोलेगा? Tell me. Definitely we use what? Padding. Maybe you give 20 pixel top and bottom and 30 pixel left and right. So अब थोड़ा सा ये आगे भी आ गया, नीचे भी आ गया, आराम से. ठीक है? Okay. What else you want to give it? Maybe I want to give it, glassy look and all. इसको glassy look देंगे, माइक बंद रखें. ये glassy look देंगे इसको, ये आना चाहिए उसमें. लेकिन इससे पहले कि मैं ये इसके ऊपर और स्टाइल अप करूं, I need to style what? I need to style maybe the other guy. Which one? हाँ जी, the नया बार, क्योंकि नया बार मेरा आ रहा है ना ऐसे, जो नया बार आ रहा है वो ऐसे आ रहा है ना. What's the name of the नया बार? क्योंकि जो नया बार आ रहा है वो आ रहा है ना खड़ा, वो कॉलम वाइज आ रहा है, वो रो वाइज आना चाहिए. Its name is नया बार, right? So we will take up the नया बार में जो मेरा UL टैग है, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा? I will make its display. हाँ जी, क्या बनाऊंगा इस डिस्प्ले का? फ्लेक्स. डेफिनेटली आई विल. जब मैं इसका फ्लेक्स बनाऊंगा वो खुद ही कॉलम्स में आ जाएंगे, रोज में आ जाएंगे. और उसका जो लिस्ट स्टाइल है ना, जो साइड में उसके ये आ रहा है ना, ये डॉट्स, आई एम टीचिंग ना, जो डॉट्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये नहीं आने चाहिए. सो वो क्या होता है? लिस्ट स्टाइल. इसका लिस्ट स्टाइल हम डिस्क रख सकते हैं, सर्कल रख सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई विल से नन. ठीक है ना? सो इसका लिस्ट स्टाइल नन आएगा तो ख़त्म हो गया वो. ठीक है? और बताओ क्या चाहिए इसका? नया बार में जो UL है, और क्या चाहिए? आप देख रहे हो कि इसमें जो साथ साथ बंदे आ रहे हैं ना, तो जब ये फ्लैक्स है तो उनको साथ साथ भगाने के लिए क्या करेंगे हम? गैप देंगे. से फॉर एग्जांपल 2 रैम की. ठीक है? सो 2 रैम की जब गैप देंगे तो बार भागेंगे, ये भागे ना. ठीक है? अब इसमें जो ये अंडरलाइन आ रहा है, ये बाकी चीज़ें आ रहा है, वो किस में है आ रहा है? वो डॉट नया बार जो मेरा है, जो मेरा नया बार है, उसके अंदर जो मेरा एंकर टैग बैठा है. ठीक है ना? जो एंकर टैग बैठा है, उसकी पहले टेक्स्ट डेकोरेशन, ये आप मुझे बताने चाहिए ना. टेक्स्ट डेकोरेशन ना, कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी गए हैं कोई बात नहीं. टेक्स्ट डेकोरेशन नीचे वाली लाइन वो नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है. ठीक है? इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे. और बताओ क्या करेंगे? उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करेंगे. डेफिनेटली उसका फॉन्ट साइज हम इंक्रीज़ करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल 1.5 रैम रखेंगे. चलो 1.5 रैम रखेंगे. यानी कि जो रूट का जो आपका ये है ना फॉन्ट, वो 16 होता है. सो उससे 1.5 मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो थोड़ा बड़ा दिखाए. ठीक है? अब बड़ा दिख रहा है. अभी इससे बहुत काम करना है इसको खूबसूरत बनाने के लिए. हाँ जी, इसका फॉन्ट वेट इंक्रीज़ करो. फॉन्ट साइज़ किया तो फॉन्ट वेट भी इंक्रीज़ करो. बना दो 800 या 900, जो आपकी मर्जी है. 700 से कम नहीं करना. ओके. इसके कलर में मज़ा नहीं आ रहा. इसका कलर मैं फ़िलहाल वाइट करता हूँ, बाद में देखेंगे. हाँ, कलर वाइट कर देंगे. और बताओ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम करते हैं अक्सर.
कैपिटलाइज करेंगे ताकि अगर आपको गड़बड़ हो गया तो वो कैपिटल में आ जाए। अच्छा, इनमें लेटर स्पेसिंग आप कर सकते हो कि 3 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग कर दो ताकि दूर दूर लेटर्स भागे। ठीक है, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है ना, ये तो कर चुके हैं हम। ठीक है जी। और बताओ क्या करेंगे हम इसका। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, हम पकड़ेंगे इसको अब। गो बैक टू द हेडर। ठीक है, अब हेडर में हम करेंगे थोड़ा सा उसको, जो हेडर हमारा सारा वो ड्यू है, वो हेडर हमारा सारा है ना वो एरिया। ठीक है ना। सो व्हाट शुड वी डू इन द हेडर, टेल मी। उसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने उसकी रो बना दी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस कर दिया हमने, तो इससे वो दूर दूर भाग गए। और पोजीशन मैंने फिक्सड की, फिक्सड से क्या होगा, फिक्सड से ये होगा जब मैं स्क्रॉल करूँगा उधर ही रहेगा, इसका बैकग्राउंड शैकग्राउंड देंगे ना तो इसको दिखेगा कुछ। हाँ, और पैडिंग दी थी मैंने इसकी, बॉर्डर रेडियस दे दो इसको, बॉर्डर रेडियस कुछ लगा लो, कितना लगाएं बॉर्डर रेडियस से 20 पिक्सल लगा लो। अभी आप दो बॉर्डर तो है नहीं, तो बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, तो इसलिए इसको हम इसका बैकग्राउंड वगैरह, इसका बॉर्डर पहले दे दो आप। हाँ, इसका पहले बॉर्डर देंगे, बॉर्डर कितना देंगे बॉर्डर से 1 पिक्सल सॉलिड। आप अगर मेरे साथ करोगे तो आपको मज़ा आएगा, दैट इज़ गुड थिंग। अब इसमें हम देंगे थोड़ा सा ग्रे कलर का या ऑफ वाइट, थोड़ा सा RGB करेंगे हम, क्योंकि हम मैं चाहता हूँ कि वो ग्लासी लुक दे ना। वाइट का क्या होता है 255 255 कामा 255 कामा 255 वाइट ही देंगे। फिर हम एक काम करेंगे इसका हम ये कम करेंगे से 0.18 कर दो। ठीक है, इसका बॉर्डर, ठीक, हल्का सा वाइट आ गया बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ देखो गोलाई मारी इसने बिकॉज ऑफ बॉर्डर रेडियस। ओके, ये इसका बॉर्डर आ गया। अच्छा, नीचे ऊपर आ रहा है, ठीक आ रहा है, या इसको और बड़ा कर सकते हैं। मार्जिन टॉप दे दो आप, मार्जिन टॉप देंगे, उससे क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा, अलग से दिखेगा, क्योंकि टॉप के साथ चिपका हुआ है ना। 20 पिक्सल आप दो इसको ताकि ये नीचे आए, मैं चाहता हूँ कि अलग से दिखे। ठीक है, क्योंकि वरना उसके ऊपर आ रहा था ना, अब ये अलग से दिख रहा है ना अभी। अच्छा, मार्जिन टॉप से क्या आ गया, ये नीचे आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसका बैकग्राउंड देंगे। अब बैकग्राउंड क्या करेंगे हम इसका बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड वो देंगे हम लीनियर ग्रेडियंट देंगे। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट में आपको मुझे बताओ, इसको हम देंगे ग्लासी लुक। ठीक है ना, ग्लासी लुक के लिए पहले हम करेंगे इसको रोटेशन 135 डिग्री का रोटेशन दे दो, वो बाद में देखेंगे, चेंज भी कर सकते हैं बाद में, कामा। और जो ये मैंने किया हुआ है ना दिस थिंग, ये कलर जो मैंने किया हुआ है वाइट वाला, इसको मैं कॉपी करूँगा, कमांड C and I will use here command V. You go color, command V, you go dame color. इथो 0.18 नहीं ब्याक था वो थोड़ा विजिबल पाम 0.37 फ्रॉम 0.8 to 0.37। ठीक है, आ गया है। हाँ जी, ये इसका लीनियर ग्रेडियंट। अब हम इसमें जब हमें ग्लासी लुक देना होता है तो उसमें क्या था, ग्लास मॉर्फिज्म हमने पढ़ाया था, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैक ड्रॉप, शाबाश, बैकड्रॉप फिल्टर। अबे यार तुम लोग तो भूल ही जाते हो फिर, उसमें हम ब्लर कर देते हैं ना, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर कर दो। कितना ब्लर करो, 10 पिक्सल का ब्लर कर दो। ठीक है, सो थोड़ा सा ब्लर आ जाएगा इसको। हाँ जी, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर किया मैंने 10 पिक्सल। और क्या करेंगे, बॉर्डर रखा, और बॉक्स शेडो दे दो इसको बॉक्स शेडो दे दो, बॉक्स शेडो हम देंगे 0 पिक्सल इन द एक्स डायरेक्शन, 8 पिक्सल इन द वाई डायरेक्शन। और बताओ 32 पिक्सल्स करेंगे, और 0 देंगे इसका ब्लर, और देंगे ब्लैक। ये बॉक्स शेडो हम देंगे इसकी ब्लैक, मगर RGBA में देंगे, बिकॉज आई डोंट वांट प्रॉपर ब्लैक, बट आई वांट जस्ट जो ना अल्फा ला ए इसमें करेगा काम हमारे पास। सो ब्लैक का क्या होता है 0 0 0, और फिर इसका देंगे 0.37 दे दो आप, 0.37 मेरा ख्याल है। ठीक है, तो
इसका बैकड्रॉप में शैडो आ गई एक ब्लैक जैसी, ठीक है। ओके, इतना काफ़ी है इसके लिए फ़िलहाल। और हम और भी काम कर सकते हैं। पहले हम इसके ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर लोगो पे, ये जो मेरा लोगो है, इसका नाम लोगो ही है कि कुछ और है? लोगो ही था ना शायद। लेट अस सी व्हाट आई केप्ट, यस लोगो, एंकर टैग है ना ये लोगो। लोगो के अंदर ये चीज़ें हैं जिसका नाम है डॉक्टर जुनैद एंड ऑल स्टाइल। सो मैं लोगो पे काम करूँगा। ये रहा मेरा हेडर और यहाँ पे डॉट लोगो। अच्छा, लोगो पे क्या काम करने बताया कोई? इसका फॉन्ट चाहिए मेरे को, इसका बाकी चीज़ें चाहिए मेरे को, ठीक है। जैसे मेरा इसका फॉन्ट साइज़ बताओ, फॉन्ट साइज़ 1.5 ही देखेंगे जो मैनू को रखा था, 1.5 रैम। जो वहाँ से मैनू टैग मेरे आ रहा है, मैनू जो मैंने उसमें रखा था, तो इसका भी रखेंगे ये। और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या रखेंगे इसकी? नन, क्योंकि इसको अंडरलाइन आ रहा है ना अंडरलाइन नीचे से, सो ना अंडरलाइन नहीं आना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और बताओ क्या करेंगे? फॉन्ट वेट, डेफिनेटली फॉन्ट वेट शुड बी देयर। फॉन्ट साइज अगर किया तो फॉन्ट वेट भी है वही 800 पिक्सल का कर लो, जो वहाँ किया था यहाँ पे 800 कर लो, ठीक है। और इसमें पॉइंटर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लिंक नहीं है, सो इसका पॉइंटर इवेंट नन कर दो, इसको पॉइंटर इवेंट्स नन कर दो, ठीक है। ताकि जब मैं कर्सर लूँगा तो यहाँ जैसे पॉइंटर आ रहा है, यहाँ पॉइंटर आ रहा है, यहाँ पॉइंटर नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, हो गया, पॉइंटर इवेंट्स नन कर दिया मैंने। इसका कलर, कलर क्या देंगे आप? ये जो आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। मैं ग्रे देता हूँ, उसमें फिर थोड़ी सी चेंज करेंगे हम, तो थोड़ा ग्रेइश आ गया होगा, ये ज़्यादा ही कुछ डार्क दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़ा इधर की तरफ लेते हैं, ये वाला देंगे हम, ठीक है। आप देखें कैसा दिख रहा है? हाँ, थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बट दिख रहा है। इसको और भी चेंज करेंगे हम, एक खूबसूरत दिखेगा। ये आ गई इसकी बॉक्स शैडो लोगो की। ये नहीं, ये किसका, ये इसका लोगो का हमने कलर कर दिया अभी, ठीक है ना। और हमने फिर नया बार का यूएल भी कर दिया, एंकर टैग भी कर दिया। और बताओ, मैं एक और लेयर डाल सकता हूँ हेडर में। जो मेरा हेडर, जो टैग, जो हेडर मेरा आ रहा है ऐसे, मैं उसमें एक और लेयर डाल सकता हूँ ऊपर, ताकि वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे हल्का सा। हालांकि मुझे वो नहीं करना है, लेकिन इससे हमें जो है ना सूडो एलिमेंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, कि सूडो एलिमेंट्स आर विद द एलिमेंट, राइट। सो यानी कि अगर मेरा हेडर है यहाँ पे, ये टर्मिनेटर किसका आ गया? अच्छा, इसका। अच्छा, यहाँ पे मैं कहूँगा डॉट हेडर जो मेरा है, ओके, उसका आफ्टर, ठीक है। उसके आफ्टर में मैं क्या करूँगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि पहले जब हम आफ्टर करते हैं तो उसमें कंटेंट क्या रखते हैं हम, क्योंकि कंटेंट एम्प्टी फर्स्टली, राइट, हमने किया है ना बार बार। इसकी पोजीशन मैं बनाऊंगा एब्सोल्यूट, ताकि ये अपनी जगह से हटे जो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एब्सोल्यूट किया तो अपनी जगह से हटेगा। अब कहीं पर भी ले सकता हूँ मैं इसको टॉप जो है वो लूँगा 5 पिक्सल, यानी कि टॉप से जो 5 पिक्सल नीचे आएगा ये, क्योंकि टॉप टॉप जो होगा इसका, जो हेडर का टॉप था उससे 5 पिक्सल जो इसका टॉप होगा, इस वाले का, ठीक है। अच्छा, और बताओ, इसका राइट भी 5 पिक्सल उससे, अगर वो उसका राइट है उससे ये 5 पिक्सल उसका थोड़ा इधर होगा, हटेगा। इस तरह बॉटम और लेफ्ट दोनों करेंगे इसको 5-5 पिक्सल, ठीक है। इसका बॉटम 5 पिक्सल रखेंगे और इसका लेफ्ट 5 पिक्सल रखेंगे, ओके। अच्छा जी, और क्या करेंगे? इसका बॉर्डर रेडियस इसका सेम ही रखेंगे जो ऊपर रखा था, ये जो बॉर्डर रेडियस है, ओके, 20 पिक्सल। कमांड सी एंड कमांड वी, ताकि उसकी गोलाई भी वही आए जो उसकी आई थी। अच्छा, पॉइंटर इवेंट्स इसमें भी नन करेंगे हम। पॉइंटर इवेंट क्यों करेंगे नन? वो तो है ही उसमें, वो तो मे बी इसमें पॉइंटर इवेंट मत आएगा। फिर पॉइंटर इवेंट्स नन, यस।
और बताओ, और क्या कर सकते हैं? इसका बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट अगर हम देंगे, जो यही दिया हमने, वही देंगे हम, ठीक है। जो बैकग्राउंड जो है लीनियर ग्रेडियंट के कमांड सी, और बैकड्रॉप फिल्टर वगैरह कमांड सी, वो भी सेम ही करेंगे हम, कमांड वी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम और ब्लर कर सकते हैं, लाइक 0.1 रखूँगा मैं इसको, और इसको तो मैं फिर ले जाऊँगा टुवर्ड्स 0 ही, ताकि दिखे ना हल्का सा। देखो ये हल्की सी यहाँ से अंदर से आ गया लाइन जैसा, 5-5 पिक्सल की स्पेस इसने दी, क्योंकि ये हेडर ही है, जो हेडर था उसी का आफ्टर मैंने उसी को काम पे लगाया। लेकिन आफ्टर में ये हेडर जो है ये फिर से बन गया, क्योंकि बिफोर से पहले आ जाएगा, आफ्टर से बाद में आएगा। मैंने ये लगा लिया इसके ऊपर, आप देखो ये थोड़ा सा गैप दिखा रहा है ना यहाँ पे, यानी कि हेडर ही आफ्टर क्या होगा, जैसे होम है, मैं इसका आफ्टर कहूँगा, वो यही है, यही चीज़ है। अब आफ्टर में क्या क्या करोगे आप उसको, तो वो मैंने किया यहाँ पे 5-5 पिक्सल की इसको गैप रखी, लेफ्ट राइट, और गोलाई वही दी जो वहाँ दी उसको, एंड ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिया इसने, और कुछ नहीं किया इसने, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अब मैंने इसका हेडर का आफ्टर भी कर दिया। अब बताओ अब किसको स्टाइल करेंगे हम, हाउ इट लुक्स। ओके, इसका बैकड्रॉप फिल्टर भी करना था एक्चुअल में, हमने इसका बैकड्रॉप फिल्टर करना था ना मेरे को, हमने किया नहीं इसका। जो बैकड्रॉप फिल्टर है और इसकी शैडो वगैरह वो सारा हम देंगे। नहीं, शैडो तो नहीं देनी चाहिए अभी, बैकड्रॉप फिल्टर देनी चाहिए, कमांड सी। क्योंकि बैकड्रॉप फिल्टर से उसका आ जाएगा ना ये बी, ताकि वो ब्लरी लुक आ जाए, तो हल्की सी ब्लरी लुक आ गई, एज यू कुड सी। ओके ओके, नाउ इट्स गेटिंग सम 3D शेप काइंड ऑफ थिंग। Okay, this is the one way of doing things, और क्या tons way of doing making things better. अब बैकड्रॉप फिल्टर क्या करता है, वो ब्लर हमने उससे करवाया एंड ऑल दैट, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस हो गई आपको। ओके, और इसका बॉर्डर रखा मैंने वो सेम, इसका बॉर्डर रेड इज बॉर्डर हमने, हाँ नहीं बॉर्डर देना चाहिए था, हमें बॉर्डर दिया नहीं, ये बॉर्डर देना चाहिए था, कमांड सी, कमांड वी। अब बॉर्डर से थोड़ा सा इसका हल्का वाइटनेस आ गई ना वो बॉर्डर की, सो उससे हल्का सा ही डिफरेंट दिख रहा है अब, ठीक है। अगर आप बॉक्स शेडो भी दोगे, आपकी मर्ज़ी है, उसको बॉक्स शेडो भी देंगे तो और ग्लो कर पाएगा वो, जो वहाँ पे हमने किया। इसको देंगे हम कमांड सी, कमांड वी, सेम ही दे दो। तो थोड़ा सा जो पीछे वाला एरिया है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा हल्का डार्क हो गया, तो थोड़ा हल्का डिफरेंट दिख रहा है, अब थोड़ा उठ के आ रहा है जैसे, ठीक है। ओके, so we have done the logo, we have done the UL, navbar UL, we have done the navbar of anchor tag. Okay, अब हम जो मैं कह रहा था आपसे कि एक स्पैन बनाया था हमने यहाँ पे, बाद में वो स्पैन के ऊपर मैं एनिमेट कर सकता हूँ हॉवर पे, कि मतलब इसके ऊपर आया, हालांकि मैं वो करूँगा नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए है, बाद में हम करेंगे उसके ऊपर काम, यानी कि बाद में हम डिफरेंट काम करेंगे। यानी कि मैं कह रहा हूँ जो स्पैन टैग है, जो नैव बार के अंदर मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पैन टैग डाला था मैंने अभी एनिमेशन के लिए, मेरा मकसद था वो, जो यहाँ पे हमने इसके बाद जो नैव है, इसके बाद स्पैन है। बेसिकली हमें एक और इनफैक्ट नैव चाहिए जो कि हमारा हैमबर्गर के लिए लगेगा, ठीक है, वो इसके बाद बनेगा। फिलहाल ये स्पैन है यहाँ पे, ठीक है, ये खाली बैठा है ना स्पैन, इस ये होम अबाउट स्किल प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट के बाद स्पैन बैठा है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल अप करूँगा, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो इस स्पैन के साथ। तो जो ये नया बार का स्पैन है, फिलहाल मैं इसको कहूँगा डॉट नया बार, जो नया बार है उसमें जो स्पैन है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। पहले मैं पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट बनाऊँगा, क्योंकि जब मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट बनाऊँगा तो अब मैं कहीं भी घुमा सकता हूँ इसको, ठीक है ना। अगर इसकी एब्सोल्यूट नहीं होगी तो ये स्टक है, तो ये यहीं पर है, ये एंड पे है तो वहीं पे रहेगा। जब मैंने इसको एब्सोल्यूट बना दिया, देखो ये थोड़े राइट में चले गई, क्योंकि इसने जगह पकड़ी थी वहाँ पे, वो हट गई, ठीक है। अब ये उठ गया वहाँ से, मैं अब कहीं पर भी लगा सकता हूँ इसको। ओके, अब पोजीशन एब्सोल्यूट बना दिया, इसका टॉप हम 0 रखेंगे, ठीक है, ताकि ये पूरा टॉप पे आ जाए। और इसका राइट मुझे देखना पड़ेगा मैं कहाँ रखूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब ये होम बटन के ऊपर आ जाए, ठीक है।
So maybe I will say some 500 pixel right now. Let me see कि ये कहाँ पे, जब तक बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे तो दिखेगा नहीं तब तक, ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो है I will give the linear gradient, ठीक है, so that it looks like something awesome. I will say linear gradient, और linear gradient में मैं 110 डिग्री रखूँगा पहले इसको, ठीक है, comma. Then I will use lots of colors, you know. You can use, like I use pink color, I use red color, I use green color, I use blue color, and all those colors, and you can change later on, you know. हम इसको change भी कर सकते हैं colors, थोड़े से उधर इधर। फिलहाल मैंने ये इसके ये कलर्स दिए, लीनियर ग्रेडियंट दिए मैं बैकग्राउंड इसका। तो दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये इसका लीनियर ग्रेडियंट पोजिशन एब्सोल्यूट किया, टॉप 0 राइट 500 पिक्सल फिलहाल रखा मैंने। चलो फिलहाल 400 पिक्सल रखेंगे इसको। बैकग्राउंड जो मैंने इसका दिया लीनियर ग्रेडियंट 110 डिग्री, पिंक रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ये इसका मैंने लीनियर ग्रेडियंट दिया। लेकिन ये तो दिखना चाहिए ना, अब ये दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि मे बी इट इज डाउन। हाँ, विड्थ देनी पड़ेगी कुछ, यस राइट, विड्थ देंगे इसको से फॉर एग्जांपल 95 पिक्सल्स का, फिर इसमें चेंज करना पड़ेगा, तभी नहीं दिख रहा क्योंकि इसका में भी जेड इंडेक्स। माइक बंद करो यार, इसकी हाइट भी देंगे ना कुछ। ये तो 90 पिक्सल्स का मेरा हेडर 90 पिक्सल होगा, तब भी नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि इसका जेड इंडेक्स होगा मेरे ख्याल से, वो मसला है। फिलहाल इसका बॉर्डर रेडियस देंगे पहले, बॉर्डर रेडियस। ऐसे दिख रहा, पता नहीं आप। हाँ, मुझे आया सर हाइट और विड्थ से। आपको हाइट एंड विड्थ से आया, तो मुझे भी तो आना चाहिए था, आया नहीं। मैं देखूंगा बॉर्डर इसका क्या मसला है, भी देखेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, बॉर्डर रेडियस पहले दे दो इसका कुछ, ताकि ये ना गोल दिखे। तो उसके लिए कितना दूंगा मैं? 20 पिक्सल देंगे, ठीक है, या 10 पिक्सल देंगे, जितनी आपकी मर्जी है, या 30 पिक्सल दे दो, वो देखेंगे फिर एडजस्ट करेंगे। फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ, या तो मैं इसके ऊपर मैंने नाम तो गलत नहीं दिया, स्पैन ही रखा था ना। इसका जेड इंडेक्स देंगे हम 1 दे, तो जेड इंडेक्स तब भी नहीं दिख रहा है, कहाँ है, हुआ क्या? सर रिफ्रेश करिए एक बार। हाँ, कहीं पर ये नहीं है जेड इंडेक्स। सर वहाँ पे हम नया में हमें 2 स्पैन है ना, तो आपने एक को हमें क्लास देके, एक को नहीं है क्लास देके, जो हमने अभी किस लिया। में? हमें ऊपर भी एक स्पैन है, उसको क्लास देकर है, तो मैंने नीचे क्लास दिया, इस जो हमने स्पैन रखा वो क्लास से आ गया कॉल ठीक करके। ठीक ठीक, हमारे पास 2 स्पैन, यहाँ पे अभी स्पैन है ना हमारे पास हेडर में भी, तो मैं तो स्पैन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस स्पैन का हम नेम देंगे, आई एम सेइंग इट यूजिंग द क्लास कॉल्ड। चलो। सर लेकिन आपने वहां पे दिया ना नया बार में जो स्पैन है, आ चाहिए ना, हमें आ गया सर। नए बार में एक ही स्पैन है ना? नए बार में एक ही स्पैन है, मगर स्पैन तो बहुत सारे हैं ना, यहाँ से हमें नाम तो देना चाहिए, ये दूसरी बात है कि डिस्पोज ऑफ कीजिए, फिर से रन कीजिए। ठीक, मैं समझ में आ गया, मेरी बात आप सुनिए ना पहले, मैं जो उसने बताया ज़हूर ने, क्योंकि जब स्पैन की बात कर रहे हैं तो यहाँ ड्रॉप कैप में भी स्पैन्स है ना, ये सब पे लगेगा ना। आई डोंट वांट टू दिस हैपन टू दिस। वहां पे नया बार लिखा ना पहले, उससे पहले। हाँ, कहाँ पे लिखा नया बार? सर अच्छा, यस यस यस, राइट 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 राइट। जब हमने नया बार लिखा तो ये स्पैन वही है, हमें यार राइट, हमें ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन फिर दिखा क्यों नहीं? सर हमें आ रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं आ रहा। डिस्पोजिंग ऑफ गो लाइव, इसी में होगा कुछ प्रॉब्लम होगी सर्वर की। नहीं, मैं ही गलत कर रहा हूँ, कहीं पे कुछ ना कुछ तो किया होगा ना मैंने। जेड इंडेक्स में इसका 1 दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे उसका जेड इंडेक्स कितना है हेडर का? इसका फिलहाल जेड इंडेक्स में रखता हूँ -1। फिर तो ये वहाँ चला जाएगा ना, तो इसका 1 रखेंगे फिलहाल, तो इसके नीचे चलेगा। जेड इंडेक्स क्या होता है कि आप ऊपर ऊपर ले जा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। इसका मैं जेड इंडेक्स रखूँगा 2 राइट नाउ,
ताकि ये ऊपर आए। ग्रीन के बाद कॉमा मत देना है, किसके वैसे बाद? तो उससे कुछ नहीं होगा। किसके कलर बाद? में बैकग्राउंड। हाँ बिल्कुल, है ना, और क्या, ये तो एरर है यहाँ पे। ठीक है, यही तो एरर था। ठीक है, यही तो एरर था ना जो था मसला। लेकिन जेड इंडेक्स आपको समझ आया? जेड इंडेक्स मैंने इसको 1 दिया, किसको? हेडर को। ठीक है, तो 0 उसका बॉडी का होगा, और उसके बाद जो है अगर मैंने इसका दिया 2, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा, है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन मुझे इसको 2 नहीं देना है, मुझे इसको नीचे ही करना है। 1 मिनट, इसको पहले 2 नहीं देते हैं, इसको हम -1 देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, -1 देते हैं ताकि पीछे चले। ठीक है, और क्योंकि वो आगे आना चाहिए, कौन, जो हमारा कौन है, वो किस पे, टेक्स्ट किस पे है, टेक्स्ट एंकर टैग पे है ना। इसका जेड इंडेक्स होना चाहिए ज़्यादा थोड़ा सा, इसका 2 रखेंगे हम ताकि ये ऊपर आए। ठीक है, अभी तो क्योंकि ये मुझे दिखना चाहिए ना, ये आपको समझ आ रही है। इसका भी करेंगे, पहले इसकी पोजीशनिंग करेंगे। ठीक, मैंने इसको 400 पिक्सल रखा है, यानी कि और चलाना है इधर, तो कितना चलेगा ये, मानो 500 पिक्सल दिखेंगे पहले, 500 पिक्सल। इसलिए हम ऐसे नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वी डू समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये बाद में हमारा और चलाना पड़ेगा, से 530 पिक्सल्स। ओके, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि ये मोटा है इससे। सो हमने हेडर को कुछ विड्थ नहीं दिए हैं अभी। हाँ, हेडर को ना हमने हाइट दी है ना विड्थ दी है ना। हेडर को हमने विड्थ दी है 100%। हाँ, विड्थ तो 100% उसका है, हाइट इसकी हमने हाइट नहीं दी है ना। सो वी कैन यूज़ हियर द हाइट ऑफ 90 पिक्सल। फिलहाल मैं इसको 90 देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि फिर सेम हाइट रहेगी ना दोनों की। अभी इसके ऊपर आ गया, थोड़ा और चलाना है, थोड़ा और चलाना है हमें इसको। किसको? कहाँ गया वो, क्या था नाम था इसका, स्पैन। ठीक है, 533 पिक्सल्स, इसका राइट 533 पिक्सल आ गया। और चलाना पड़ेगा 535 पिक्सल्स। ओके, नाउ इट इज़ हॉवरिंग ओवर द दैट थिंग। लेकिन अब ये जो मसला इसका ये है कि ये पीछे जाना चाहिए एंकर टैग से, तो ये जा क्यों नहीं, इसका 2 हमने जेड इंडेक्स रखा, नया बार के एंकर टैग का हमने रखा 2। हेडर का कितना है, हेडर का जेड इंडेक्स 1, तो ये तो पीछे ही जाना चाहिए। देखो अब ये ऊपर आ गया। ठीक है, पूरा ऊपर आ रहा है, क्योंकि जेड इंडेक्स इसका 1 आ गया, जो कि हेडर के साथ है। जो आपका हेडर है उसको हम -1 देंगे ताकि वो नीचे जाए। ठीक है, नहीं अगर -1 देंगे तो वो भाग ही जाएगा, इसलिए हम 1 देंगे उसको। ठीक है, ताकि वो रहे, और इसका हम देंगे 3 हेडर फिलहाल 1 मिनट के लिए, ताकि ये ऊपर आए। लेकिन ये किसके पीछे जाना चाहिए, टेक्स्ट के पीछे जाना चाहिए ना। इट शुड गो बैक ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट किस में है मेरा, वो यूएल में, यूएल जो हमारा नहीं, यूएल में हम हमारे पास किसके पास टेक्स्ट कौन है, हमारा एंकर टैग है ना। हमारा एंकर टैग ही तो ये है ना, जिसके पास टेक्स्ट है। तो यस सर। हाँ, अगर इसको पीछे लेना है मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये किसके पीछे आए, आपके, क्योंकि टेक्स्ट दिखना चाहिए ना, ये इसके ऊपर आ रहा है, फिर मैं इसको आगे, जब मैं अबाउट करूँगा ये अबाउट के पास जाना चाहिए। लेकिन इसका जेड इंडेक्स कितना होना चाहिए, अगर इसका जेड इंडेक्स 3 है तो एंकर टैग ऊपर आ ही नहीं रहा। उसका अगर मैंने 3 रखा था, या उसका 2 भी अगर रखेंगे तो वो ऊपर आना चाहिए, वो आ नहीं रहा। तो एंकर टैग जेड इंडेक्स को पीछे, इसको पीछे लेना पड़ेगा ना, स्पैन को मैं थोड़ा पीछे लेना चाहता हूँ, एंकर टैग को इसके ऊपर लेना चाहता हूँ मैं। किसको, आपको समझ आ रही है जेड इंडेक्स क्या कर रहा है? जेड इंडेक्स क्या कर रहा है, चीज़ें एक दूसरे के टॉप पर है, लेयर हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये नहीं जा रहा, क्योंकि इसका जो है ना, जो एंकर टैग है उसकी आपको जो जो आपका ये जो है ना पोजीशन जब तक ये नहीं होगी, कौन, जब तक पोजीशन ये नहीं होगी ना एब्सोल्यूट एंड ऑल, तब तक वो पीछे आगे नहीं जाएगा, है ना।
हाँ, तो अब आपकी जो हेडर है उसकी पोजीशन क्या रखी है आपने? एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसकी भी पोजीशन क्या है हेडर की? हेडर की पोजीशन फिक्स्ड है फ़िलहाल, ठीक। ओके, इसका हमने पोजीशन एब्सोल्यूट रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो एंकर टैग है उस वो आगे पीछे हो जाए। अगर मैं इसकी पोजीशन रखूँगा एब्सोल्यूट, तो ये कहाँ जाएगा? तो ये तो भाग ही जाएगा ना, वहाँ जाएगा, फिर इसको पोजीशन रीपोजीशन करना पड़ेगा, इसलिए इसको पोजीशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी जेड इंडेक्स से काम नहीं बन रहा है, इसको काट ही देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये होम के ऊपर तो आ गया, लेकिन मैं चाहता था मैं इसको पीछे ले जाऊँ, -1 अगर मैं करूँ इसको तो जा रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा क्योंकि ये हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना वो। इसका कलर स्पैन का मैंने कलर क्या किया, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी हमने स्पैन की, ताकि ये आ जाए टॉप 0 पे है, राइट इसका विड्थ आ गया, इसका विड्थ आ गई इसकी, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दिया मैंने, और जेड इंडेक्स -1 किया तो पीछे हो रहा है। लेकिन इसका मसला ये है कि इसको हम ये जो है ना, इनको थोड़ा सा हम करेंगे लाइट मोड में ले जाएंगे। और RGBA करेंगे हम, और यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे थोड़ा सा 0.2 not like this. I say command C, I go here and say comma, command V, and I go here say comma and command V. 0.2 यानी कि 0.2 का मतलब क्या है कि मैं इसको कम कर रहा हूँ। हाँ, सर वो RGBA में आएगा, ये तो डायरेक्टली कलर है। हाँ, ब्लू के बाद डायरेक्टली आप पॉइंट दे रहे हो, पहले RGBA डालना है। 0.2 RGBA। ग्रीन को हमने क्या किया, ये हटा दो, 2 ही कलर को फिलहाल इसके। लेट अस सी हाउ इट लुक्स नाउ, इट्स गॉन टू मच ट्रांसपेरेंट। सो R.5 अगर 4 रखेंगे हम, 0.5 रखो इसका, हाँ हल्का आ रहा है अब, ठीक है। अब और चाहिए मेरे को उसका, इसकी विड्थ इंक्रीज़ करूँगा ना, थोड़ा सा ये करूँगा मैं, 7 पे रखूँगा, 0.7 पे रखूँगा, हाँ हल्का आ रहा है, ठीक है। ओके, इसको 5 पे रखेंगे, इसको भी 5 पे रखेंगे, कलर थोड़ा तेज़ ही करेंगे, लेट इट बी रेड एंड लेट इट बी समथिंग लाइक ब्लू। ओके ओके, अब थोड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, इसकी विड्थ थोड़ी कम करनी है ताकि वो उसकी इसके ऊपर ना आए, ठीक है ना। इसकी विड्थ कम करनी है ताकि ये जो है पूरा ना स्पेस करे पक चले। अब मुझे मेन चीज़ मकसद जो है, आई वॉन्ट दिस कि मैं जब मैं अबाउट पे हॉवर करूँगा ना, ये आना चाहिए अबाउट के ऊपर। किसके ऊपर आना चाहिए? अबाउट के ऊपर। तो उसके लिए मैं पहले जो इसकी ट्रांजिशन है उसको कहूँगा भाई साहब 1 सेकेंड लगाना आप, एंड ईज इन आउट, ठीक है। और वो कब होगा हमारा, कैसे करेंगे हम, ये मैंने इसलिए किया था कि ताकि हम प्रैक्टिस करें, वरना हम ऐसे करेंगे नहीं, बाद में हम इसको हटा देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले जो नया बार है, ठीक है, उसमें जो मेरा LI है ना, LI में जो मेरा nth चाइल्ड है, ठीक है, जो मेरा nth चाइल्ड है 1, जो पहला चाइल्ड है वो तो होम ही है, उसके हॉवर पे टिल्डा स्पैन को क्या करोगे आप, याद है ऐसे करते थे हम। तो उसमें मैं कहूँगा भाई साहब आप राइट जो है ना उसका रखना वही जो मेरा था अभी, क्योंकि वो वही पे रखना है पहले, जो इसका राइट है 5 पिक्सल्स, वो वही रखना, कमांड C एंड कमांड V। अब मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो, कितने चाइल्ड्स हैं, 5 हैं, ठीक है। अब चाइल्ड नंबर 2, जब चाइल्ड नंबर 2 होगा तो अब मुझे अबाउट पे
इसको डालना है, यानी कि जब चाइल्ड नंबर 2 पे हॉवर होगा तो अबाउट पे हॉवर होगा तो ये यहाँ पे जाना चाहिए। तो यानी कि अगर मुझे वहाँ जाना है तो यानी कि उसका मतलब है कि मुझे ये काम करना है ना, से अराउंड 400 पिक्सल। देखते हैं कि जब मैं अबाउट पे हॉवर करूँगा तो ये अबाउट पे जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इतना भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या काम करूँगा, मैं ज़्यादा ले रहा हूँ इसको, यानी कि अराउंड 390 लेते हैं हम, 390। यानी कि जब मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट और जा रहा है, यानी कि नहीं मैंने ज़्यादा उधर चलाया ना, मुझे इंक्रीज़ करना है 410। यानी कि जब मैं यहाँ पे इसको ले जा रहा हूँ 410 उससे ज़्यादा 420 कर दो, यानी कि जब मैं अबाउट पे ले जाऊँगा 420 पे आ जाएगा ये, और थोड़ा सा ज़्यादा करना है, 22 करेंगे। ठीक है, यानी कि जब मैं अबाउट पे ले रहा हूँ इसको तो अब ये आ रहा है अबाउट पे, और लेना है 23। व्हेन आई गो हियर इट गोज़ टू द, अबे यार और चलाना है इसको, लेट इट बी 25 कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो 25 पे ठीक ठाक आ रहा है, और थोड़ा सा हल्का करेंगे 26 कर देंगे। ठीक है, नाउ इट्स गेटिंग लिटिल बेटर, और भी करना पड़ेगा, छोड़ो अब। तो अब जब स्किल्स पे करूँगा मैं तो अब कहाँ जाना चाहिए, तो स्किल्स चाइल्ड नंबर 3, 1 2 3, उस वक्त इसका क्या होगा, और कम होगा, मानो 280 पे रखेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है। यानी कि अबाउट पे किया मैंने तो यहाँ पे चला गया, जब मैं स्किल्स पे करूँगा तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, लेट इट बी 310। यानी कि जब मैं अबाउट पे जाऊँगा तो स्किल्स पे आना चाहिए, आ रहा है ना, थोड़ा और करेंगे इसको 315 कर देंगे। ठीक है, ओके, और जब मैं प्रोजेक्ट्स पे करूँगा, अब जो चाइल्ड नंबर 4 मेरा होगा, दैट इज़ प्रोजेक्ट्स चाइल्ड नंबर 4, उस वक्त क्या होना चाहिए इसको, और राइट जाएगा से 200 देखते हैं पहले, 200 पे आ जाता है कि नहीं, हाँ आता है, लेकिन एक चीज़ ये परफेक्ट आ गया 200 पे, लेकिन अब इसका जो साइज़ है ना वो टीएस बाहर जा रहा है। सो दैट मीन्स उस वक्त मुझे चाहिए नॉट ओनली कि 200 पिक्सल बट ऑल्सो आई वॉन्ट इंक्रीज इट्स विड्थ। ठीक है, अब विड्थ जो है ना इसकी वो बड़ी होनी चाहिए। विड्थ कितनी थी इसकी पहले, 95 पिक्सल थी, अब 95 पिक्सल नहीं, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कितना करेंगे, सेम फॉर एग्जांपल 130 पिक्सल, लेट मी सी इट ना, हमें देखना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे नहीं करना था, हाँ इसी में चौथा है ना ये। तो जब मैं इधर जाऊँगा तो इसकी विड्थ बढ़ रही है, यहाँ पे इतनी है, इसकी विड्थ बढ़ रही है, लेकिन जब विड्थ बढ़ गई ठीक है, लेकिन इसको साइड में अब और चलाना पड़ेगा। यानी कि इसका जो ये है 200 नहीं चलेगा, 200 से कम, से 180 पिक्सल्स देखेंगे। इज इट 180 पिक्सल गुड, थोड़ा और कम है, 170 कर देते हैं, 170 पिक्सल्स। देखो इस वक्त बड़ा भी हो रहा है, अब प्रोजेक्ट पे जा रहा है, देखो अब जा रहा है। ओके, अब कॉन्टैक्ट्स के बाद यानी कि चाइल्ड नंबर 5, अब कॉन्टैक्ट्स पे जाना चाहिए, तो उस वक्त कहाँ ले जाऊंगा मैं इसको, बताएगा कोई, अराउंड 95। अरे यार 0 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल होना चाहिए, क्योंकि राइट 0 पिक्सल तो जाएगा, तब जाएगा ना एंड पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि कॉन्टैक्ट इधर है, थोड़ा सा 10 पिक्सल्स का हम रखेंगे, लेकिन थोड़ा साइज़ भी बड़ा होना चाहिए इसका, क्योंकि 20 पिक्सल रखेंगे, इनफैक्ट 30 पिक्सल रखूँगा मैं, देखेंगे कहाँ आता है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, उस वक्त विड्थ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स का टेक्स्ट बड़ा है। तो विड्थ फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पर रखी थी 130, वही रखते हैं यहाँ पर भी, देखते हैं कितना आता है, 130 पिक्सल रखूँगा मैं यहाँ पर भी, 130 पिक्सल्स। यानी कि मैं इसको ले जा रहा हूँ, अब देखो बड़ा भी हो गया, और थोड़ा एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब देखो ये एनिमेटेड हो लग रहा है मुझे, कि अबाउट पे गया, अबाउट पे गया, स्किल्स पे हॉवर कर रहा हूँ, स्किल्स पे गया, प्रोजेक्ट्स पे जा रहा हूँ, तो साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इसका अपना ये ले रहा है। अगर मैं कॉन्टैक्ट्स पे जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट पे जा रहा है। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बिट ऑफ सम काइंड ऑफ अ स्लाइडर, राइट, गिविंग अब लेकिन मुझे इसकी एनिमेशन में मज़ा नहीं आया। ठीक है, आई वॉन्ट टू, अरे यार कंट्रोल ऑप्शन डाउन है, इसके बहुत सारे कलर्स दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक कलर हम ब्लू दिया है, एक ये देंगे, और एक कलर इसका हम
पिंक में दे देंगे, ठीक है। एंड मेरा ख्याल 0.6 कर दूंगा मैं इसको, और इसको 0.7 कर दूंगा मैं बिगिनिंग और एंड में। फिर से कुछ गड़बड़ की मैंने, हाँ। शायद कामा शामा हटा दिया, कामा नहीं किया हमने, कामा और कामा, यहाँ पे कामा का गम है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा ये रेनबो टाइप दिख रहा है, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक सम काइंड ऑफ अ रेनबो। लेटर ऑन वी कैन यूज इट्स एनिमेशन एंड ऑल, जहाँ पे इसका ये रेनबो भागेगा, एनिमेट करेगा, जैसे हमने पीछे इसको किया बैकग्राउंड को, वैसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। हो गया एनिमेशन। लेकिन हम बाद में ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको छोटा करूँगा, इस बच्चे को जब मैं छोटा करूँगा, तो पोजीशंस का पंगा फिर से पड़ जाएगा। देखो अभी तो ठीक है, फिट बैठ रहा है, लेकिन जो ही मैं इसको थोड़ा सा उधर आगे पीछे करूँगा, तो मुमकिन है कि ये ठीक से नहीं बैठेगा। अभी तो लकीली हमें ये ठीक से बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं और कम करूँगा इसको, तो उस सूरत में देखो ये अब जुनैद के पास चला गया। तो यानी कि जितना स्क्रीन साइज़ है, मीडिया क्वेरीज चलानी पड़ेंगी बहुत सारी, ठीक है। तो वैसे तो हम हटा ही देंगे, जब हमारा इतना साइज़ होगा तो हम इसको हटा के हैम्बर्गर देंगे, लेकिन ये प्रॉपर नहीं आता, यानी कि इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो बेटर इज़ कि यू यूज़ सम काइंड ऑफ एनिमेशन विच इज़ रिलेटेड टू अबाउट के साथ जो चीज़ ऑलरेडी है, तो ताकि हमें एक्स्ट्रा उसके ऊपर काम ना करना पड़े मीडिया क्वेरीज, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि हम अबाउट को ही कुछ एनिमेट करेंगे, स्किल्स को ही एनिमेट करेंगे। जैसे कि उस बच्चे ने, किसी ने मुझे भेजा था कि मैंने स्किल्स पे हावर किया, तो स्किल्स में कुछ हो रहा है, जैसे इसका टेक्स्ट कलर एनिमेट हो रहा है वगैरह वगैरह, या नीचे लाइन आ रही है, उसके ऊपर काम करेंगे हम, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना करो, क्योंकि वरना आपको फिर मीडिया क्वेरीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? वो समझ आ रहा है पाजी? वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। सो इसलिए मैं एक काम करूँगा, पहले इसको जो ये नया आ रहा है ना, ये वाला किस्सा, ये स्पैन वाला किस्सा जो है, इसको मैं बंद ही कर लेता हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू दैट। This was the practice. This is getting good practice of Anna's child and all that. But command / close this. Now I don't have that thing, right? Okay. In fact, जो मेरा यहाँ पे जो span है, मैं इसको भी बंद ही कर दूँगा, जो मेरा span है। हाँ, इसको भी नाम देने की ज़रूरत नहीं थी, हाँ नाम देना चाहिए, but we didn't need to give it a name because मैंने कहा था नया बार का span, लेकिन we should give the name, right? Okay. फिर एनिमेशन कैसे करेंगे हम इसकी, ठीक है। हम फिर इसकी व्हाट इज टाइम 10:36, oh it's getting too much time, okay. Because we stop here, we continue this class tomorrow and we do different animations, because it's getting 10:36. I have promised other students that I will teach lesser than 1 hour, but now I'm teaching more than 1 hour. Now what we do is we have to apply the JavaScript to make it on the click of it there should be the black background and it should not be seen, दो आइकन्स नहीं, एक ही आइकन दिखना चाहिए, और वो टॉगल होना चाहिए। यानी कि अभी तो मेरा लाइट मोड है, तो यानी कि मुझे सिर्फ ये चांद दिखना चाहिए। जब मैं चांद पे क्लिक करूँगा, सन दिखना चाहिए, और पीछे बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, और इसका ड्रॉप कैप वगैरह लगाना है, और इसको एनिमेट करेंगे हम डिफरेंट तरीके से। यानी कि यहाँ पे हम इसको हॉवर पे होम का ही कुछ हो रहा है एनिमेशंस, ताकि हमें लग रहा है कि सिलेक्शन हो, जैसे अभी हमने किया, लेकिन वो वी डू डिफरेंट वे, राइट। That thing we will continue with that tomorrow inshallah ta'ala. ठीक है जी? Any questions till now? Anybody having any questions? No sir. Okay, समझ आया इतना जो हम कर रहे हैं? Yes sir. साथ में करो, it will give you the practice of everything we have learned so far. Okay जी, Allah Hafiz. See you guys tomorrow inshallah ta'ala.